آپ اس کا پہلا بات اس کی 7 آیت سے لم کے کلام کی مفہوم ہے یشوع پہلا باب 7 آیت لم کے کلام کی جو مفہوم ہے اوپر مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ یشوع کے بارے میں کون جانتے ہیں؟ یہ کس کا شاگرد تھا؟ موسیٰ۔ موسیٰ کا شاگرد تھا۔ اور موسیٰ جب خدا میں سو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو مسح کیا جاتا ہے تاکہ یہ بنی اسرائیل کو آگے لے جا سکے، اور کہاں پر لے کر جا سکے؟ وعدہ کیا ہوا وعدے کی ہوئی زمین پر جو خدا نے ابراہیم، اسحاق کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ اپنے وعدوں میں پورا ہو جائے، تو خدا نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑی حوصلہ شکنی تھی کہ ہم یہ بحر الزم کو پار کر جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں کوئی مصیبت یا آگے کوئی جنگ ہمیں نہیں لڑنی پڑے۔ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب بحر الزم آتا ہے، سمندر جب آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے وہ بڑبڑاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اب دیکھو خدا کی نجات کے کام، تو وہ 2 حصے ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ستائش کرتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے بڑبڑانا جو ہے ان کی زندگی میں۔ تو ہماری زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں ہماری زندگی میں بہت بڑبڑانا ہوتا ہے۔ اس میں کیا خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ فقط کیا کر، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ۔ تو آج مجھے آپ کو حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل نے حوصلے ڈھیر کر دیے، جب وہ نکلے ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ ہمارے راستے ایزی ہوں گے، ہم آسانی سے اس ملک کے کنعان میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس ملک کی جاسوسی کی گئی تو وہاں پر 2 شخص نے پازیٹیو اس کی تھنکس دی اور 8 جو لوگ تھے انہوں نے نیگیٹو رپورٹ دی۔ 12 لوگ تھے، 10 نے غلط رپورٹ دی، 2 نے ٹھیک رپورٹ دی۔ تو میرے چیزوں کیا ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل اسی وقت ان کے حوصلے جو ہے
वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं कि हम मर जाए। हम तो उनके सामने टिड्डों की मानते हैं, हम छोटे हैं, हम निकम्मे हैं। जब हमारे ऊपर भी मुसीबत आती है तो हम इसी तरह समझते हैं कि ये जो पहाड़ है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, ये हमसे नहीं जाएगी, बल्कि जो फरमाता है कि ये शरीयत की किताब जो है ये तेरे मुंह से ना हटे, कि इसके मुताबिक कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तू पढ़ता रहे, इसको फॉलो करता रहे, ये तेरी रहनुमाई करती रहे। तो यहोशू ने अपनी कौम को मजबूत किया, हालांकि इससे पहले ये भागा हुआ डरा हुआ है। खुदा इससे क्या कह रहा है कि हौसला रख, मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ। तो मेरे चीज़ों, आज हम देखें जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं तो हमारे हौसले ख़त्म हो जाते हैं। अगर रुपया पैसा हमारी जेब में ना हो, उसके बाद हमारे जहन सोच ख्यालात में और कोई जंग छिड़ जाए, इसके बाद अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे हालात में क्या होगा, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए नहीं, लेकिन हौसला रखें, वो आपको देगा। वही जंग में जो हमारे जहन में लग जाती है, उसी जंग में मेरा और आपका जो खुदा है उसका कलाम जो है वो काम करता है। और हम कलाम तो लेते नहीं, कलाम की भी डोज लेते नहीं, लेकिन हम दुनिया के ख्यालात को, दुनिया के कामों को, दुनिया के जो कुछ भी हम सुनते हैं, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं, तो हमारे अंदर जो कुछ भी अगर कलाम है तो वो भी निकल जाता है। तो यहोशू ने बनी इस्राएल को समझे कि कलाम से जोरावर किया कि हम वो इलाका ले लेंगे, वो जगह ले लेंगे, वो हमारी है, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। अब खुदा ने मुझे और आपको बरकत दी है कि नहीं? यस, हाँ जी, दिया बरकत दी हुई है। जी। तो हम तो उस पर खड़े नहीं होते, हमारे हौसले गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हौसला चिकनी हो जाती है, सख्त सो मजबूत हो जाता है। देखिए ये जिंदगी है, इसमें एक दफा मुझे और आपको फतहबंदी होगी, उसके बाद फिर हम गिरेंगे, जंग फिर हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक ही दफा जंग कर लें और उसके बाद जंग नहीं करनी। जंग हमारी रूहानी जो है वो जारी सारी रहेगी जब तक हम यहाँ से मेहनत नहीं करते, जब तक हम यहाँ से ऊपर नहीं जाते, उतनी देर तक हमारी जंग ये चलती रहेगी। हम ये समझते हैं कि बस ये काम होगा, जिस तरह बनी इस्राएल ने देखा कि बस समुद्र पार, आगे खुशियाँ। तो बियाबान में क्यों उनकी पूरे दिनों का सफ़र जो है वो 40 सालों में बीता, इसलिए कि उन्होंने हौसले हार दिया, ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से पूरे दिनों का सफ़र जो है वो 40 सालों में वो पूरा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके अंदर मूसा, यहोशू ये रहकर रखे हुए थे, इसके बावजूद भी वो क्या करते, बल्कि खुदा के मुआजिज़ात बनी इस्राएल ने मिस्र में देखे, खुदा साफ थे, उन पर आए, मिस्रियों पर, इसके बावजूद भी उनके हौसले टूट जाते। रात को आग का सुकून, दिन को बादल, फिर मन सलमा बटेर, जो कुछ भी वो मांगते खुदा उन्हें देता, इसके बावजूद भी वो हौसला छोड़ बनाना, ये क्या बात है? तो क्या हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही? हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बड़े सुकून इत्मीनान खुदा के हाथों में पड़े हुए, शुक्रगुजारियाँ, दुआएं, और जैसे ही हमें कोई मिलेगा, हमारे ज़हन में कोई और बात करेगा, हमारा कलाम, हमारी रूहानी ज़िंदगी एकदम ऑफ हो जाएगी, हौसला टूट जाएगा, हम मजबूत होते हुए फिर गिर पड़ते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कलाम को अपने अंदर, तो यहोशू ने इनको दिलेर किया कि ये जो किताब है तेरे मुंह से ना हटे। खुदा ने जो कहा था, जो खुदा ने कहा कि जो मूसा ने तुझे बताया यहोशू, तो उनको बता, और ये दिलेर हो जाए, हौसला रखें, और इन्होंने आगे जाना। तो इन्होंने अपने हौसले इसीलिए
निकारा कर दिए, उनको तोड़ दिया कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मूसा जो अब नहीं रहा। और ये क्या करते हैं, खुदा का काम कभी भी नहीं रुकता, चाहे वो मेरे से ले, चाहे भाई से ले, चाहे आप से ले, उसने अपने काम को जारी और सारी रखना है। वो नामुमकिनात का खुदा है और वो निकम्मों से भी काम अपना लेना जानता है। माशाअल्लाह, आमीन। तो मेरे चीज़ों, फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम बीमार हैं, लाचार हैं, अगर हम बीमारी की आदत में भी कहते हैं कि तेरे मार खाने से मुझे शिफा मिल गई है, कितने भी बीमार हैं, कितने भी हालात नासाज हो चुके हैं, उसको बोले तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है, क्योंकि तूने मेरा फिदिया दिया। हम हौसला हार करते हैं, अभी भी हम बहुत से कलाम भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन ईमान कहाँ है? तुम्हारा ईमान कहाँ है? काम में दिखा दो। ठीक है, यीशु मसीह फरमाते कि तुम मेरे साथ थे, क्या तुमने नहीं देखा क्या क्या चीजें, क्या क्या मुझे, और कितना लोगों ने वो अपना खुराक खाई। 5000 मर्द और बच्चे, औरतें जो भी हैं, तकरीबन 20,000 के करीब लोगों ने ये खाना खाया। तुम कहाँ? काम दिखा दो, तुम्हारा ईमान कहाँ? जब कश्ती में ये तूफान, जब घराने में तूफान आ जाता तो हमारा ईमान भी मुंतशर हो जाता, तो मजबूत हो जाता। ये मजबूती की जो किताब है, जो रूहानी किताब है, जो कलाम है, ये मुझे रात को मजबूत करती है। अब ये जैसे ही यशवा आगे दूसरे चैप्टर में 2 जसूस भेजता है यरूब में, और वहाँ पर क्या किस्सा है, राहब है, कस्बी औरत है। अब देखिए खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, निकम्मे इंसान को इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ वो 2 जसूस जो है वो क्या करते हैं कि आपस में कंप्रोमाइज करते हैं। इसका मतलब जब हमारे हौसले बुलंद होंगे, हमारे अंदर कलाम होगा, हम मजबूत होंगे, तो फिर आगे जो शरीर की बातें हैं, जो शरीर हमारी जिंदगियों में प्लान और मनसूबे लेकर आना चाहता है, या लोग हम उसको इस्तेमाल करता, लोगों को इस्तेमाल करता है शरीर जो है, तो मेरे जीजों वो घायल हो जाएंगे। जब आपके अंदर ये शरीयत की किताब होगी, ये आपके अंदर इनकलाब होगा। उस राहब ने कहा कि जब तुम लोग आओ तो क्या करना, मेरे पूरे घराने को छोड़ देना। उससे पेशतर बादशाह जो है वो जसूसी करवाता है कि 2 शख्स हमारे यरूब के अंदर दाखिल हुए हैं। देखें, वो एक बहुत बड़ी फसील थी, दरवाजे लगे हुए थे। अब वो एंटर तो 2 जसूस जो यशवा ने भेजे दाखिल तो हो गए, बादशाह ने भी उसके पीछे जसूस भेज दिए। तो वो एक कस्बी औरत थी, उसके पास रंग बिरंगे लोग आते थे। तो जब बादशाह के जसूस आते हैं, अपना वो उसके प्यादे आते हैं, सिपाही आते हैं, वो कहते हैं तेरे घर में 2 लोग आए हैं। कहता हाँ। कहती है कहाँ आए थे, पर मुझे नहीं पता कौन थे और अब कहाँ गए हैं। इतना नहीं पता कि वो उनको छत के ऊपर छुपाया हुआ है। खुदा किनको इस्तेमाल कर रहा है जिनका कोई वजूद ही नहीं। उस वक्त, उस जमाने में, उस हालात में क्या कस्बी का बयान है, क्या उसके बारे में बयान है। बल्कि दानियों की किताब में भी मुसल्लम कहता है कि ईमान ही से कस्बी ने, राहब ने उन जसूसों को जगह दी, छुपाया। बड़ा ईमान है। तो हम क्या है, हम तो फिर उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं, तो फिर हमारा ईमान कहाँ है? काम ही चला दो। यीशु मसीह इस तरह शागिर्दों को कहता है, मेरे चीज़ उसने फिर उन 2 जसूसों से कंप्रोमाइज किया कि हमें तो बचा, क्योंकि आपके खुदा के काम जो है उनको सुनकर हमारे दिल पिघले जा रहे हैं, हम घायल होते जा रहे हैं। खुदा जो है, आपका खुदा जो है, आपके कलाम से जो आपके अंदर वो रखना चाहता है, उससे दूसरे लोग घायल हो जाएंगे, वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएंगे, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे जब हमारे अंदर कलाम होगा।
कलाम क्या फरमाता है? यीशु मसीह फरमाते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम या पता ना, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे वहाँ मैं हाजिर तो है मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मौजूद। ऐसा ही है। तो जब हम घर में या चर्च में या कहीं भी दुआ के लिए इकट्ठे होते तो फिर हम उसकी तस्दीक कितनी करते हैं? हमारे यहाँ ज़हन इधर उधर ऊपर नीचे चल रहा होता है, इसीलिए हम सुनते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। जब हम रूह बदन जान को परफेक्ट जो ईमान के साथ हम कलाम की तरफ और अपना ध्यान और ज्ञान खुदा की तरफ लगाएंगे तो फिर मेरे अजीजों वो कुछ हमारे लिए बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यही तो वजह है कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन खुदा के जलाल से महरूम भी रहते हैं। तो यशुआ ने ये काम कर दिखाया। दाल कहती है कि तुम लोगों के असर से, हमारे खुदा के रोग से हम जो लोग हैं घायल हो रहे हैं कि वो वाकई बड़े बहादुर हैं लेकिन ये जब्बार नस्ल थी, बड़े बड़े कद थे इनके। इसीलिए तो पहले जब मूसा ने भेजे आदमी तो वो कहते कि वो बहुत बड़े हैं, उनका फ्रूट जो है बहुत बड़ा है, कि वो जब्बार है, उनके सामने फिटे हैं। तो हम भी इसी तरह अपने आप को हम ईमानदार बनते हैं लेकिन शरीर के सामने हम अपना सर भी नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि ईमान ही नहीं। ये शरीयत की किताब जो है ये हमें हौसला देती है, मजबूत करती है। उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, राहब ने उसके घराने में इकट्ठे होकर मुतफिक होकर तो उन्होंने यीशु से कहा कि भाई बाहर नहीं निकलना, ये तो मारे जाओ। तो फिर इसका मतलब है हमें इत्तफाक करने की जरूरत है। इत्तफाक में बरकत, बाहर नहीं निकलना। मुराद यह है कि रूहानी तौर पर मुझे रात को यक दिल होने की ज़रूरत है। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो लोगों के दिल जो है, शरीर के जो दिल है घायल होना शुरू हो जाएंगे। जिनके अंदर शरीर बसता है वो जब आपकी बात सुनेगा तो वो घायल हो जाएगा। मुराद के आपकी आवाज़ को फॉलो करेगा। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो घायल होने वाले हैं? वो हमारे अपने खानदानों के बच्चे हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं। वो आपके कलाम के लिए तरस रहे हैं कि आप बोले। जब ये शरीयत की किताब हमारे मुंह के सामने रहेगी, इस पर हम अमल करते रहेंगे। मेरे चीज़ों, इसके बाद जैसे वो आते हैं वो सब को फिना करते हैं। अब देखिए खुदा जब भी हुक्म देता था कि ये चीज़ें मार दो, गाड़ दो, जला दो, कोई भी चीज़ बाकी ना बचे। और बहुत से बाइबल स्कॉलर तो नहीं, दूसरे लोग कहते हैं खुदा ने छोटे बच्चों को क्यों मारा, उनका क्या कसूर था? बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्या खुदा कैसा है? खुदा तो किसी की हलाकत नहीं करता भाई। जिसके अंदर वो जम्स होगा, गुनाह का जम्स होगा, उससे औलाद जो पैदा होगी वो मार डालेगी। तो फिर खुदा को पाक लोग चाहिए कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो उसने सबको मार डाला सिवाय राहब के घराने। मेरे चीज़ों, हमें चाहे बीमारी बेचारी हो, हमें हौसला रखने की जरूरत है। हमारे बदले में कुछ भी ना हो फिर भी हमें हौसला रखने की ज़रूरत है। सो मजबूत हो जाओ और हौसला रख। जो कुछ ये शरीयत की किताब में है इसको याद रख, इस पर अमल कर, ये तेरे मुंह से ना हटे। तो क्या होगा? हम सारी चीज़ों पर हावी हो जाएंगे, गालिब आ जाएंगे। इसलिए हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। राहब की जो गवाही है, ये देखिए मेरे अजीज़ों, नए अहदनामा में भी इसकी गवाही बड़ी अजीम हुई है। तो हम भी ऐसे ही भटकते हुए गली चौकों मोड़ों में खड़े होने वाले लोग थे जिनको मुझे रात को खुदा ने चुनकर इस लायक किया कि हम ये शरीयत की किताब के मुताबिक चलने वाले, इस पर अमल करने वाले और खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हुए उसकी बादशाह में दाखिल होने वाले बन गए। वो यरूशलेम में दाखिल हो गए। बनी इस्राएल यरूशलेम में दाखिल हुए कि नहीं? जब उन्होंने हमला किया उनको सबको मार गिराया, यहाँ तक कि यरूशलेम की दीवारें भी गिर गई और वो दाखिल हो गए।
अपने मुल्क में दाखिल हो गए। तो हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा शहर कौन सा है? नया यरूशलेम, जहाँ पर खुदा का बेटा यीशु मसीह रहता है और वो नीचे लेकर आने वाला है, उसी में हम रहेंगे। मुझे और आपको भी एक घर में दाखिल होना है। मुझे और आपको भी उस इबादत गाह के अंदर दाखिल होना है। जिस तरह वो जन्म का लंगड़ा उस हैकल के अंदर कभी भी नहीं गया जब तक वो नहीं चला। तो जैसे वो चला, पतरस और यूहन्ना के साथ कहाँ गया? हैकल हैकल के अंदर चला गया। इसका मतलब है खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह मुझे और आपको अपने रहमा में, अपने हाथ के नीचे, अपने घर में दाखिल करना चाहता है। तो इनका भी यही मकसद था कि इन्होंने मुल्क कनान, मुल्क मौदा में दाखिल होना है, और मुझे और आपको भी खुदा की बादशाही में दाखिल होने की ज़रूरत है। फर्क मजबूत हौसला रखने की ज़रूरत है। जंग मुझे और आपको रूहानी तौर पर हर रोज़ लड़ने की और करने की ज़रूरत है। फाइट करने की ज़रूरत है, जो हम रूहानी तौर पर तैयार हों। जब हम तैयार होंगे तो फिर हम लड़ेंगे। तो रूहानी जंग इस तरह होगी, कलाम से होगी, आपके अल्फाजों से, जो आप कलाम से मबूल अल्फाज जो है, कलमा जो है वो बोलेंगे तो इब्लीस घायल होगा, उसकी तस्वीरें घायल होंगी। जो गली चौकों मोड़ों में खड़ी हुई है, मेरा और आपका इंतज़ार कर रही है, वो घायल हो जाएंगे। वो आपके साया से भी भाग जाएंगे, वो आपको रास्ता देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये शरीयत की किताब है, आपका ईमान मजबूत है, आपके हौसले बुलंद हैं। तो खुदा इसे बेशुमार हौसला मैं मजबूत होगा, हौसला रखें, मैं तेरे साथ। तो आज हमारे साथ भी खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हमें हालात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हालात जैसे भी हालात को न देखें, कलाम को देखें, खुदा के बेटे यीशु को देखें, तो फिर देखें वो आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच से बढ़कर काम करेगा। सो मेरे चीज़ों, हमें जो कलाम फरमाता है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? रिपीट कर रहा है, भाई मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया, भाई तेरे लिए यीशु मसीह ने फिदिया दिया हुआ है। उसका फिदिया क्यों हम राजा कर रहे हैं या रद्द कर रहे हैं? उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दे दिया। हमारी मुसीबतों का, दुखों का, परेशानियों का, बीमारियों का, निशानियों का, जो कुछ भी हम करते पीते खाते उड़ते बैठते जो कुछ होता है, उसका फिदिया तो उसने 2000 साल पहले दे दिया। तो फिर हौसला रखें, हौसला फिक्री ना, कम अपनी कुव्वत को ना, अपने मन को मजबूत रखें और कदम बढ़ाएं। हमें अब ठहरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। रूहानी तौर पर मुझे और आपको रूहानी जंग लड़ने की ज़रूरत है। सो खुदा के पाक पढ़ा और सुना जरा हमसे।